Okay, so these are the requirements of gene cloning. What are the requirements? Gene of interest, molecular scissors, vectors, ligases, which is known as the molecular glue, and the last one is the expression system. I will explain each requirement one by one in separate videos to keep the videos short and also that is easier to be uploaded. Okay, so the first requirement is the gene of interest. The gene of interest. What is the gene of interest? The gene of interest is a segment of DNA, is a segment of DNA. That segment of DNA function is gene, and that gene where we are interested to clone it, to insert it, and to clone it into another into the genome of another organism. That is known as what? Gene of interest. So what is gene of interest? That is a segment of DNA that function as a gene, and that is to be inserted and cloned into the genome of another organism. So how this gene of interest is obtained? How this gene of interest is obtained? How the gene of interest is obtained? So that could be obtained in three different ways. Number one, that could be obtained from the DNA of an organism. The gene of is obtained directly. No, the word directly is good here. Directly from the DNA of an organism. For example, this is a segment of DNA, and certain part of the DNA, that is what the gene of interest, GOI. So we can cut this segment of DNA with the help of endonucleases. We can cut that with the help of endonucleases. That could be cut, and then it could be inserted into the vector, and then it could be introduced into the cell, into the bacterial cell. So that is directly from the DNA of an organism. That is the gene of interest. The second one is mRNA, or RNA is obtained from an organism, from a cell of an organism. That RNA is then cDNA is synthesized with the help of that RNA. cDNA is synthesized, and then this gene of interest is obtained. The gene of interest is obtained from cDNA. You can see it here. For example, we have this is the DNA in a cell. This is the DNA in a cell. The gene of interest is here. The gene of interest is here. This is inside the cell. Keep this thing in mind. This is the DNA inside the cell. This DNA synthesizes RNA. So this is the RNA. Consider this is the mRNA. Then this mRNA is used. This mRNA is used to produce the cDNA. So now we have, this is the cDNA, the copy DNA or the complementary DNA. This is the cDNA, the copy DNA. And then the gene of interest is cut from this. This is the gene of interest. This is the gene of interest, and this gene of interest is obtained from the cDNA instead of the DNA, the genomic DNA directly. उसकी निस्बत कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो इधर देखें, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें. ये हमारे पास किसी सेल के अंदर उसकी DNA है.
ये डीएनए उस सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करती है और एमआरएनए बनाती है। तो हम इस सेल से ऑब्टेन करते हैं क्या, इस सेल से हम ऑब्टेन करते हैं एमआरएनए। इस एमआरएनए को जब ऑब्टेन करेंगे, एमआरएनए को जब ऑब्टेन करेंगे, सो यू नो इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, आउटसाइड द सेल, इन द टेस्ट ट्यूब, इस आरएनए से बनाएंगे क्या, cDNA। इस आरएनए की मदद से बनाएंगे क्या, cDNA इन द टेस्ट ट्यूब, नॉट इनसाइड द सेल, कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हम उसी cDNA से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करेंगे। इसकी एक सिग्निफिकेंस है, अगर आप अंडरस्टैंड करें इसको, अगर ये हमारे पास एक जीन है और इस जीन में आप अंडरस्टैंड करें कि उसमें इंट्रॉन्स हैं और एक्सॉन है। फॉर एग्जांपल दिस पार्ट इज एक्सॉन, दिस वन इज इंट्रॉन एंड अगेन दिस पार्ट इज एक्सॉन। तो इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है। और आप जानते हैं कि जब ये आरएनए बनेगा तो इसमें इंट्रॉन होंगे, और इधर देखिए ये इंट्रॉन है, एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है। लेकिन आप लोगों ने स्प्लाइसिंग पढ़ी है, स्प्लाइसिंग। उस स्प्लाइसिंग के दौरान इस आरएनए मॉलिक्यूल से ये इंट्रॉन जो है ये रिमूव हो जाएगा, सो जो सिर्फ एक्सॉन रह जाएंगे। तो नाउ दिस इज द एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन एंड द इंट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड। इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुका है। जब इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो अब इससे अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट बनेगा तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टिल यू नो दैट विल प्रोड्यूस द सेम प्रोटीन एज बाय दिस gene, but you know the size of the DNA is shorter now। और इस shorter DNA को या shorter gene को हैंडल करना, उसको इंसर्ट करना, इसको इनकॉर्पोरेट करना आसान होता है एज कंपेयर टू द जीन विद इंट्रॉन्स बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। तो अंडरस्टैंड करेगा यहाँ पर इस जीन का साइज है, सपोज करें 1500 बेस पेयर, तो यहाँ पर इस जीन का साइज रह जाएगा क्या, अगर इंट्रॉन रिमूव करें तो सपोज करें 900 बेस पेयर्स। तो यू नो क्यों, बिकॉज इंट्रॉन इस स्टेप में रिमूव हो जाएगा जब स्प्लाइसिंग हो जाएगी। सो इस वजह से ये जो तरीका है, ये जो दूसरा तरीका हमने पढ़ा कि आरएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आरएनए एंड द आरएनए इज ऑब्टेन्ड नॉट डायरेक्टली द डीएनए। तीसरा तरीका जो है वो कहलाता है क्या, तीसरा तरीका कहलाता है कि जीन इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। जीन जो है उसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस, उसको हम कहते हैं जीन सिंथेसाइजर। तीसरा तरीका जीन सिंथेसाइजर, सिंथेसाइजर, जीन सिंथेसाइजर, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ, आर्टिफिशियल synthesis of gene, and this is you know कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर वगैरह, कंप्यूटर कंट्रोल्ड synthesis of, control synthesis of polynucleotide, polynucleotide strands, ठीक। तो एक कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टेप सीक्वेंस जो है वो इंस्टॉल किया जाता है और उस कंप्यूटर की मदद से फिर डीएनए जो सिंथेसिस है वो जनरेट करती है, वो बन जाती है। आई विल अपलोड अ वीडियो टू यू समवेयर कि आप अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा। लेकिन ये जिस तरह ये ओलिगोस बनाते हैं, ये प्राइमर डिज़ाइनिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, इसी तरीके से कंपनीज़ जो है आप उनको सीक्वेंस बताते हैं किसी जीन का, और वो जो कंपनी है वो आपके लिए उसी सीक्वेंस के मुताबिक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डिज़ाइन करता है और बनाता है। दिस इज़ नोन एज व्हाट, जीन सिंथेसाइजर। द जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप इस जुमले को कि द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू artificial gene synthesis, उसकी मदद से ये सिंथेसिस होती है। तो तीन तरीके हैं इसके। एक तरीका है क्या, एक तरीका है हमारे पास कि द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए। नो, हमारे पास जीनोमिक डीएनए है,
किसी सेल से ऑब्टेन करते हैं, उसको काटते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम किसी सेल से आरएनए ऑब्टेन करते हैं और उस आरएनए में जीन है, उस आरएनए से फिर हम उसकी मदद से बनाते हैं क्या, cDNA, और जीन ऑफ इंटरेस्ट फिर इस cDNA से ऑब्टेन करते हैं जब इसको हम एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए यहाँ पर काटेंगे। सिग्निफिकेंस उसका ये है कि साइज़ जो है कम हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ ऑब्टेन्ड or synthesized with the help of artificial gene synthesizer, which is a machine. The machine is controlled by the machine is controlled by computer. So this is computer controlled synthesis of polynucleotide strands. So इस जुमले को हम ऐसे summarize कर सकते हैं कि gene of interest is obtained through artificial gene synthesis. Thank you.